Good morning, students. How are you? Hope you all are well. So, we are at chapter number 8. Its name is Multiples and Factors. So, today in this video, I am giving to the explanation about some terms and divisibility tests. Try to understand it with me, okay? So, our first term is even numbers. I know you all are known about it, but once again I'll tell you what are even numbers. A number which is multiple of 2, which is multiple of 2 is called even number, like 2, 4, 8, 6, 10, 12 and so on. Okay, these are even numbers, 2, 4, 6, 8, yeah, 8, 6, whatever you like. Clear? 2, 4, 6, 8, 10, 12 and so on. These all are even numbers which are multiple of 2, जो 2 के टेबल में चले जाते हैं. 2 का टेबल सबको आता है ना, जो 2 के टेबल के साथ डिवाइड हो जाते हैं उसको कहते हैं even numbers. Our next term is odd numbers. Those numbers which are not multiple of 2, not multiple of 2, जो 2 के टेबल में नहीं जाते, like 1, 3, 5, 7, 9, 11 and so on. These are odd numbers. Even numbers are those which are multiple of 2 which are divided by 2. Clear? Odd numbers are those which are not multiple of 2. यानी कि it means these numbers are not come in the table of 2. Clear? These numbers are not divided by 2. So, I hope you understand the concept even numbers and odd numbers. Okay, after this, prime numbers. Our third term is prime numbers. Beta, please be careful to listen this. The numbers having exactly 2 different factors, namely 1 and the number itself. वो numbers मैंने फैक्टर्स सिखाए हैं ना कैसे निकालते हैं. फैक्टर्स मीन्स कोई भी नंबर किस किस के टेबल में जाता है, वो सारे फैक्टर्स होते हैं. क्लियर? तो वो नंबर जिसके सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स हों, ओनली 2 फैक्टर्स, लाइक एक तो 1 के टेबल में तो सारे नंबर्स जाएंगे, और एक वो खुद नंबर, यानी कि वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में जाता है या 1 के टेबल में जाता है, उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल 2. अब 2 को देखो, 2 किसके टेबल में जाता है, सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में. हम कह सकते हैं 1 इंटू 2, ठीक है, या कह सकते हैं 2 इंटू 1, यानी कि एक सिर्फ 1 हो गया और एक वो खुद नंबर हो गया, और किसी के टेबल में भी 2 नहीं आता. दिस इज़ वाई इट्स कॉल्ड प्राइम नंबर. द नंबर विच हैव एग्जैक्टली ओनली 2 फैक्टर्स, namely 1 and the number itself, एक वो number. This is called prime number. Our next prime number is like 3. 3, see here, 3 is the number which have exactly 2 different factors, that is 1 into 3, namely only 1 and the number itself. 3 comes not in any other table. That's why it is called prime number. After that 4. अब 4 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है. Why so? Because 1 के टेबल में 4 जाएगा, 2 के टेबल में भी 4 जाता है, 2 2s are 4. सो यहाँ पे 4 फैक्टर्स होंगे, 1 2 3 4, 4 फैक्टर्स हो गए ना. क्लियर? 2 चलो कॉमन हो गया, फिर भी 3 फैक्टर्स बनते हैं, 1 2 3. बट प्राइम नंबर्स आर दो नंबर्स which have only 2 different factors. So 4 is not a prime number. Clear? After that come to the 5. अब 5 को देख लो.
5 भी सिर्फ अपनी टेबल में जाता है और किसी टेबल में नहीं आता. दैट्स वाई 5 इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर. 5 के बाद 6 बेटा 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, तो 6 को हम नहीं लेंगे. 7 को चेक करो. 7 किसी टेबल में आता है? नो, ओनली 1 के टेबल में या 7 के टेबल में आता है. ओनली 2 फैक्टर्स. Whenever we have only 2 factors of any number, that number is called prime number. I hope you understand. Clear? Our next term is composite numbers. The numbers having more than 2 different factors. What I am saying? The numbers having more than 2 different factors. Prime number में हमने किया only 2 different factors. अब जिस नंबर के 2 से ज़्यादा बनते हैं वो सारे कंपोजिट नंबर्स हैं. या ये भी कह सकते हैं कि प्राइम नंबर्स को छोड़ के जितने भी नंबर्स बचते हैं वो सारे कंपोजिट हैं. लाइक 4 था ना, ठीक है. आवर फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज़ 4 बिकॉज ये 1 के टेबल में भी जाता है, 2 के टेबल में भी जाता है. क्लियर? फिर उसके बाद 6 आ गया था, 1 के टेबल में भी, 2 के टेबल में भी. क्लियर? इसके बाद 8 आ गया, 1 के टेबल में भी, 2 के टेबल में भी. ठीक है? क्लियर? तो इनमें क्या हो रहा है? 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं, जैसे 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4. तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं ना, तो ये कौन से नंबर हो गए? प्राइम नंबर्स. क्लियर बेटे? वी कैन ऑल्सो से दैट दोज नंबर्स which are coming in the table of number 1 and itself with this in other table it also include, that is called composite number. But prime numbers are only come in itself, in its table only. Clear bete? I hope you understand prime numbers and composite numbers. So after this we come to the divisibility test. अब divisibility test होता क्या है बच्ची? वी शैल बी डीलिंग विद लार्ज नंबर्स. हम बहुत सारे नंबर्स के साथ डील करते हैं. क्लियर? तो एक्चुअल डिवीज़न में हमें बहुत सारा टाइम लगता है. क्लियर? जब हम बड़े से बड़ा नंबर भी करेंगे, उसको डिवाइड करके देखेंगे, पता लग जाएगा कि वेदर दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय सम अदर डिजिट और नॉट. सो टू सेव टाइम, अब टाइम को सेव करना हमने, तो हमारे पास कुछ टेक्निक्स है. वी हैव सम टेक्निक्स which could help to check whether a number can divide the other number without actually doing the division. So we can break a number into factors. We can breaking a number into factors. So वो factors जो वो help करते हैं हमें, हमारा time waste होने से बचाते हैं. That is called divisibility. There are some techniques. So first technique is, how could we know this number is divisible by 2? So our first technique is divisibility by 2. हमें कैसे पता चलेगा कि बड़े से बड़ा नंबर भी 2 से के डिवाइड? क्या हम करके देखेंगे सारे कि हाँ सपोज़ करो मेरे पास ये नंबर है 92860. अब इतना बड़ा करके देखूंगी कि 2 के टेबल से ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा. आई हैव सम टेक्निक. ठीक है? वी हैव सम टेक्निक प्रोवाइडेड बाय मैथ्स हाउ टू फाइंड आउट कि दैट दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 और नॉट. सो दोज टेक्निक्स आर, आई एम गिविंग यू सम एग्जाम्पल. If the digit at one's place is 0, 2, 4, 6, 8. These 5 digits if we have at the ones place. Ones place कौन सी होती है बेटे? Ones place last place. Ones place कौन सी होती है? Last. If we have at the last these digits 0, 2, 4, 6, 8, then that number must be divisible by 2. ये 5 digits हैं. If we have these 5 digits at the ones place, last place of the number, it means it can definitely divisible by 2. This is the technique how to find out that number is divisible by 2. Clear? नेक्स्ट इज़ डिविजिबिलिटी बाय 3. अब 3 के साथ देखेंगे कि कौन से बड़े से बड़ा नंबर भी कौन सा ऐसा है जो 3 के साथ डिवाइड हो सकता है. हमें वो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है. वी हैव नो रिक्वायरमेंट टू डिवाइड इट. एक्चुअली वी हैव सम टेक्निक्स. दैट टेक्निक
It means if the sum of the digits of a number is divisible by 3. 3 का टेबल सबको आता है, clear? We all are known about the table of 3. If the sum of digits of a number, if we have, बेटा number क्या होता है? Like 8,600, 8,90,124. This is, we have number, and these are the digits like 8, 9, 0, 1, 2, 4. When we speak single, that is called digit, and we have combined the digits, that is become number. So let the example of this, if I have number 8,90,124. So divisibility test कैसे? If the sum of the digits, sum मतलब plus, digits ये वाले हैं, अगर मैं इनको प्लस करके देख लूँ, जस्ट 8 + 9 + 0 + 1 + 2 + 4, clear? Then I got the answer 24. इनको प्लस करके I have the 24 answer, and I am known about it that 24 is divided by 3. 3 8s are 24, clear? 3 8s are 24. 3 के टेबल में 24 आता है. It means this number is divisible by 3. This is the technique how to find out whether the number is divisible by 3 or not. So वो कैसे find out करेंगे? जो भी नंबर बड़े से बड़ा नंबर हमारे पास है, उनको एक एक डिजिट को प्लस करके देख लो, उनका टोटल जो आएगा, अगर वो 3 के टेबल में है, it means the whole number is divided by 3. Clear बेटे? So our next is divisibility by 4. अब 4 के साथ देखेंगे कि बिग से बिग नंबर भी 4 के साथ डिवाइड हो जाता है कि नहीं, without actually doing division. So what is the technique to find out whether the number is divisible by 4 or not? If the number formed by its last 2 digits is divisible by 4. कोई भी बिग से बिग नंबर है हमारे पास, अगर उसके लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स 4 के साथ डिवाइड होते हैं, इट मीन्स वो सारे का सारा नंबर 4 के साथ डिवाइड हो सकता है. लाइक वी हैव एग्जाम्पल 214, क्लियर? अब लास्ट 2 डिजिट्स कौन से हैं? 1 and 4. 14, सबको 4 का टेबल आता है. अब आप देख लो 4 के टेबल में 14 आता है. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16. तो 14 तो आया ही नहीं. इट मीन्स 214 is not divisible by 4. Not divisible by 4. सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स को चेक करना है हमने, चाहे नंबर जितना मर्जी बिग हो, क्लियर? अब सपोज करो मेरे पास नंबर है 896,120. इतना बिग नंबर है मेरे पास. आई हैव दिस मच नंबर. अब इसको मैं ऐसे डिवाइड करके देखूंगी 896,120 4 के साथ. बहुत टाइम लगेगा. सो मच टाइम इज कंज्यूम टू डिवाइड एक्चुअली. सो व्हाट इज द टेक्निक? ओनली लास्ट 2 डिजिट्स आई हैव टेकन. लास्ट 2 डिजिट्स आर 20, क्लियर? अब 20 चेक कर लो 4 के टेबल में आता है कि नहीं. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20. So 20 आता है 4 के टेबल में. It means this much number 8,96,120 is actually or exactly divisible by 2, divisible by 4. क्या टेक्निक आई 4 में कि लास्ट 2 डिजिट्स को चेक करो. दैट्स इट. द नंबर चाहे जितना मर्जी बिग हो, लास्ट 2 डिजिट्स को चेक करो. 4 के से देखो टेबल में आता है. इट मीन्स वो सारे का सारा नंबर 4 के साथ डिविजिबल हो सकता है. क्लियर बेटे? कम टू अवर नेक्स्ट डिविजिबिलिटी, दैट इज़ डिविजिबिलिटी बाय 5. अब 5 की डिविजिबिलिटी कैसे टेस्ट करेंगे? दिस इज़ सो मच ईजी. इफ़ द नंबर एट वंस प्लेस वही जो लास्ट डिजिट होता है, क्लियर? आइदर 0 और 5. अगर किसी भी नंबर के लास्ट में, जैसे 395 है, 840 है, 9835 है, 7680 है, अगर वंस प्लेस पे कह सकते हैं या इसको यूनिट्स प्लेस भी कह सकते हैं, सेम चीज़ होती है बेटे. 5 और 0 है, 5 आ गया, इट मीन्स ये 5 के साथ डिवाइड होता है. 0 है, ये भी 5 के साथ डिवाइड हो सकता है. 5 है, 5 के साथ डिवाइड. 0 है, 5 के साथ डिवाइड.
लास्ट डिजिट देखना है, अगर लास्ट डिजिट में 0 और 5 आ रहा है इट इज़ डेफिनेटली डिवाइडेड बाय 5. सो नेक्स्ट इज़ डिविजिबिलिटी बाय 9. इट इज़ ऑल्सो ईजी, सेम वही मेथड है. कौन से टेबल वाला जो मैंने डिविजिबिलिटी बाय 3 कराया. अगर बड़े से बड़ा नंबर के इसको सम करके देखो, प्लस करके देखो उस डिजिट्स को, अगर वो 3 के साथ डिवाइड होता है इट मीन्स वो डिविजिबल बाय 3 है. 9 के टेबल में भी ऐसे ही है. इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर डिविजिबल बाय 9, लाइक वी हैव नंबर 7,28,316. अब इसको डिवाइड एक्चुअल में करके देखूंगी तो सो मच टाइम इज़ कंज्यूमिंग. सो व्हाट इज़ द टेक्निक हाउ टू फाइंड आउट वेदर दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 और नॉट. तो इनको भी, इनके डिजिट्स को सम कर लो. व्हाट आई एम सेइंग, इनके डिजिट्स को प्लस करके देख लो. 7 + 2 + 8 + 3 + 1 + 6, it is 27. And we all are known about that 27 is coming in the table of 9. 9 ones are 9, 9 twos are 18, 9 threes are 27. So 27 is divisible by 9. It means the whole number is this, is divisible by 9. Clear? 9 के टेबल की डिविजिबिलिटी की टेक्निक समझ आ गई. जो भी बिग से बिग नंबर है उनके डिजिट्स को सम कर लो. अगर वो उसका टोटल जो है 9 के टेबल में आता है तो वो सारे का सारा नंबर डिवाइड हो सकता है 9 के साथ. So our last divisibility mean is divisible by 10. How to find out whether the number is divisible by 10 or not? A number which has 0 at ones place. Ones place means last place. Clear? अगर वहाँ पे 0 है तो वो बिग से बिग नंबर हमें डिवाइड करने देखने की ज़रूरत नहीं है. It means that number is divisible by 10. Like we have number 20. लास्ट में 0 आ गया. It means it is divisible by 10. Next is I have 170. लास्ट में 0 है, divisible by 10. If we have 2495, इसके लास्ट प्लेस 5 है, 0 नहीं है, it is not divisible by 10. So how to find out the number is divisible by 10 or not? If it has 0 at ones place. I also repeat, ones means units place. We can also say that units place. Units means last place. और इसको क्या बोल सकते हैं, लास्ट प्लेस. अगर आपके एक नंबर में लास्ट प्लेस पे, यूनिट्स प्लेस पे, वंस प्लेस पे 0 है, इट मीन्स वो बिग से बिग नंबर भी 10 के साथ डिवाइड हो सकता है. क्लियर? सो दीज आर द 6 डिविजिबिलिटी बाय टेक्स्ट. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट. ओके, थैंक यू सो मच.